فلسطین اور اسرائیل کی سرزمینیں بہت قدیم ہیں۔ انہوں نے باری باری سلطنتوں کو بانتے اور ٹوٹتے دیکھا ہے۔ لڑائی جھگڑے کی کہانی یہاں کی مٹی میں ہی لکھی ہوئی ہے۔ یہ دو قوموں کی کہانی ہے جو ایک ٹاک رشتے میں الجھے ہوئے ہیں۔ ایک قوم ایک تسلیم شدہ ریاست ہے جس کے پاس زبردست طاقت ہے۔ دوسری ایک ہتھیار بند تنظیم ہے جو قبضے اور مایوسی کے سخت حالات سے نکلی ہے۔ ان کی کوشش صلاحیتوں اور قانونی حیثیت کے اعتبار سے بالکل مختلف ہے۔ ہر صبح جب ہوتی ہے تو روشنی کے ساتھ ساتھ گزرے ہوئے دکھوں کا سایہ بھی نظر آتا ہے۔ یہاں کی ہوا بھی اکثر بوجھل محسوس ہوتی ہے۔ ان کا ہائی دکھوں اور اندر ہی اندر سلگتے غصے سے بھری ہوئی دنیا اکثر افسوس کے ساتھ دیکھتی ہے جب یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ اسرائیل ایک قوم کے طور پر ایک بہت بڑے المیہ کے بعد بنا۔ اس نے ایک محفوظ پناہ گاہ اپنا وطن بننے کی کوشش کی، لیکن اس کا وجود ہمیشہ لڑائی جھگڑوں سے گھرا رہا ہے۔ اس کی سرحدیں سیاسی فولاد سے کھینچی گئی لکیریں ہیں جن پر اکثر تنازع رہتا ہے۔ اسرائیل ڈیفنس فورسز یعنی IDF اس کے محافظ ہیں اور اس کے ارادے کی نشانی ہیں۔ اسرائیلیوں کے لیے حفاظت صرف کوئی خیالی چیز نہیں ہے، یہ روز کی ضرورت ہے۔ ہر ممکن خطرے سے ہر وقت چوکانا رہنا ہے۔ انہوں نے پرانی دشمنیوں کے بیچ ایک جدید قوم بنائی ہے۔ ان کی ٹیکنالوجی کی مہارت دنیا بھر میں مشہور ہے، جو ان کی عقل مندی اور مضبوط ارادے کا ثبوت ہے۔ حماس یعنی اسلامی مزاحمتی تحریک سن 1987 میں سامنے آئی۔ یہ مسلم برادرہڈ سے نکلی ہوئی ایک شاخ ہے۔ اس کے ماننے والوں کے لیے یہ قبضے کے خلاف ہمت کی علامت ہے، مگر اسرائیل اور مغربی ممالک سمیت بہت سے دوسروں کے لیے یہ ایک دہشت گرد تنظیم ہے۔ اس کی طاقت کا مرکز غزہ کی پٹی ہے، جو زمین کی ایک تنگ اور گنجن آباد پٹی ہے۔ یہاں مشکلات اور گھیرا بندی کے درمیان اس کی سوچ نے جڑ پکڑ لی ہے۔ حماس سیاسی جماعت اور فوجی طاقت دونوں طور پر کام کرتی ہے۔ اس کے مقاصد اس کے مذہبی عقیدے اور فلسطین کے بارے میں اس کے خیالات سے گہرے جڑے ہوئے ہیں۔ اسرائیل اور حماس کے درمیان مقابلہ بہت زیادہ غیر برابر ہے۔ یہ دو برابر کی طاقت والی معمولی فوجوں کے درمیان جنگ نہیں ہے۔ اسرائیل دنیا کی سب سے جدید ترین فوجوں میں سے ایک ہے، جبکہ حماس انوکھے طریقوں اور کبھی نہ ہار ماننے والے ارادے پر بھروسہ کرتی ہے۔ یہ غیر برابری ان کے ہر مقابلے کی بنیاد ہے۔ ہر جرف اس بڑے فرق کا ثبوت دیتی ہے۔ ایک طرف بے تحاشا فوجی طاقت ہے، دوسری طرف کمی کی وجہ سے پیدا ہونے والی نئی تدبیریں ہیں۔ کہانی داؤد اور جالوت کی سی ہے، لیکن کون داؤد ہے اور کون جالوت، یہ ہر کسی کے اپنے دیکھنے کے انداز پر ہے۔ اسرائیل ڈیفنس فورسز IDF کو ٹیکنالوجی میں بہت برتری حاصل ہے۔ اندھے ڈرون فضا میں گشت کرتے ہیں، ان کے کیمرے سب کچھ دیکھنے والی آنکھوں کی طرح ہیں۔ ایسے ہتھیار ہیں جو بالکل ٹھیک نشانہ لگاتے ہیں۔ جدید نگرانی کے نظام بہت زیادہ معلومات اکٹھی کرتے ہیں۔ یہ 21ویں صدی کی جنگ ہے جو ڈیٹا اور کمپیوٹر کے پروگرام اور الگوریدمز سے چلے جاتی ہے۔ اسرائیل تحقیق اور نئی چیزوں کی ایجاد پر بہت پیسہ خرچ کرتا ہے۔ اس کا فوجی اور ہتھیار بنانے والا اداروں کا نظام دنیا میں سب سے آگے ہے۔ ٹیکنالوجی میں یہ برتری اس کے دفاعی منصوبے کی بنیاد ہے۔ اس سے وہ اپنی فوجی طاقت کا اظہار اپنے لوگوں کے لیے کم خطرہ مول کر سکتا ہے، جو ایک بہت اہم بات ہے۔ اسرائیل کی فوج بہترین تربیت یافتہ اور تجربہ کار لوگوں پر مشتمل ہے۔ اکثر یہودی شہریوں کے لیے فوج میں لازمی ملازمت کی وجہ سے فوجیوں کی بڑی تعداد میسر ہوتی ہے۔ بہت سے لوگ کئی سالوں تک ریزرو فوج میں بھی کام کرتے رہتے ہیں۔ اس سے ایک ایسا معاشرہ بنتا ہے جو اپنی فوج سے بہت قریب سے جڑا ہوا ہے۔ IDF کے پاس 1,69,500 فعال اہلکار ہیں۔ اس کی ریزرو فوج اس سے بھی بڑی ہے، جس میں تقریباً 4,65,460 لوگ شامل ہیں۔ تربیت بہت سخت ہوتی ہے تاکہ مضبوط اور اچھا کام کرنے والے دستے بنیں۔ وہ ہر قسم کی صورتحال کے لیے تیار رہتے ہیں، دہشت گردی کے خلاف کارروائی سے لے کر بڑی لڑائیوں تک۔ یہ تربیت یافتہ لوگ کسی بھی مشین جتنے ہی ضروری ہیں۔ IDF کے پاس روایتی ہتھیار بہت زبردست ہیں، خاص طور پر اس کی ہوائی اور زمینی طاقت۔ اسرائیلی فضائیہ F-35 جیسے جدید لڑاکا جہاز استعمال کرتی ہے۔ حملہ کرنے والے ہیلی کاپٹر زمین فوج کی ضروری مدد کرتے ہیں۔ زمین پر مرکبہ ٹینک جو اسرائیل میں ہی بنائے گئے ہیں،
अपनी हिफाजत की सलाहियत के लिए मशहूर हैं। इनकी मदद के लिए बड़ी तादाद में तोपें और फौजियों को ले जाने वाली बख्तरबंद गाड़ियां भी हैं। इसराइली बहरिया अगरचे छोटी है, लेकिन उसके पास जदीद आबदोज़ैन और गश्ती कश्तियां हैं। फौज के मुख्तलिफ शोबों की मिलकर लड़ने की ये सलाहियत इसराइल को कई मैदानों में अपनी ताकत दिखाने में मदद देती है। इस फौजी ताकत को कायम रखने के लिए एक बहुत बड़ा दिफाई बजट है। सन 2023 में इसराइल ने दिफा के लिए तकरीबन 27.5 अरब डॉलर रखे। इसके अलावा उसे अमेरिका से सालाना तकरीबन 3 अरब डॉलर की बड़ी फौजी मदद भी मिलती है। इस माली मदद से इसराइल निहायत जदीद हथियार खरीद सकता है। इससे मौजूदा हथियार को बेहतर बनाने का काम भी जारी रहता है। इसराइल के हवाई दिफाई निज़ाम जैसे कि मशहूर आयरन डोम, डेविड स्लिंग और एरो इस सरमायाकारी का सबूत हैं। ये निज़ाम उसके आबादी इलाकों को रॉकेट और मिसाइल हमलों से बचाने के लिए बनाए गए हैं। खबरों के मुताबिक इसराइल के पास जोरी हथियार रखने की सलाहियत भी है, जो दुश्मन को बड़ा हमला करने से रोकने की उसकी ताकत में मजीद इजाफा करती है। हमास का फौजी हिस्सा इज़्ज़ुद्दीन अल-क़स्सम ब्रिगेड्स बिल्कुल अलग तरीके से काम करता है। उसके लड़ाका लोगों की तादाद हजारों में है, अंदाजे के मुताबिक 7,000 से 50,000 तक। उनकी सबसे बड़ी ताकत यह है कि वो गाजा की पट्टी से बहुत अच्छी तरह वाकिफ हैं। ये तंग और गुंजान आबाद इलाका उनका चीला है। वो इसके शहरों की बुलबुलायों, उसकी तंग गलियों और उसके छुपाए हुए रास्तों को खूब समझते हैं। इस वक्फियत की वजह से वो इस तरह हरकत और लड़ाई कर सकते हैं जो एक बड़े लश्कर के लिए मुश्किल पैदा करे। वो आम लोगों में घुल मिल जाते हैं, जिससे उन्हें निशाना बनाना मुश्किल हो जाता है। ये मकामी वक्फियत एक ऐसा ताकतवर हथियार है जो नजर नहीं आता और जिसका मुकाबला सिर्फ टेक्नोलॉजी से आसानी से नहीं किया जा सकता। गेरिल्ला जंग यानी छपकर हमला करना हमास के फौजी मंसूबे की बुनियाद है। वो छपकर हमला करने और भाग जाने, गात लगाकर हमले करने और खुद बनाए हुए दामकस आलात IEDs इस्तेमाल करते हैं। उनका सबसे नुमायां हथियार उनके रॉकेट हैं। अगरचे ये अक्सर बगैर निशाने के और बहुत सादा किस्म के होते हैं, लेकिन ये इजरायली शहरों तक पहुंच सकते हैं। ये खौफ फैलाते हैं और रोजमर्रा की जिंदगी में रुकावट डालते हैं, जिससे लोगों पर नफसियाती असर पड़ता है। हमास ने पिछली लड़ाइयों में हजारों रॉकेट दागे हैं। वो तंग तबाह करने वाले मिसाइल भी इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि रूसी कॉर्नेट, मोटर और कंधे से चलाए जाने वाले हवाई दिफाई मिसाइल, जिन्हें मैनपैड्स कहते हैं, भी उनके हथियारों में शामिल हैं। इन तरीकों का मकसद नुकसान पहुंचाना और टेक्नोलॉजी में बेहतर दुश्मन को ताकत देना और कमजोर करना है। शायद हमास की सबसे खास बात उसकी जमीन के नीचे बनी सुरंगों का बड़ा जाल है। ये जमीन के नीचे बने हुए रास्ते गाजा के नीचे हर तरफ फैले हुए हैं और कुछ खबरों के मुताबिक इसराइली इलाके तक भी जाते हैं। ये गाजा मेट्रो के मकसद के लिए इस्तेमाल होती है। इससे लड़ाका लोग बगैर नजाराए हट सकते हैं, हथियार महफूज कर सकते हैं और कमांड पोस्ट बना सकते हैं। सुरंगें अचानक हमले करने और इसराइली निगरानी से बचने के लिए इस्तेमाल होती हैं। इस नेटवर्क को बनाना और कायम रखना एक बहुत बड़ा काम है। ये इसराइल की जबरदस्त हवाई ताकत और जमीनी बर्तारी के मुकाबले में एक सोची समझी तब्दीली है। ये छुपे हुए रास्ते IDF के लिए हमेशा परेशानी का सबब रहते हैं। हमास तन्हा काम नहीं करती, उसे इलाके के मुमालिक, खास तौर पर ईरान से माली मदद और हथियारों समेत इमदद मिलती है। ये बाहर से मिलने वाली मदद उसकी फौजी सलाहियतों को कायम रखने के लिए बहुत जरूरी है। जदीद रॉकेट और टैंक तबाह करने वाले मिसाइल अक्सर ईरान में बने होते हैं या सीधे ईरान से आते हैं। माली मदद भी मुख्तलिफ रास्तों से आती है, जिनमें डिजिटल करेंसी के नेटवर्क भी शामिल हैं। मादी मदद के अलावा हमास को कब्जे के खिलाफ लड़ने का एक मजबूत नजरिया भी हिम्मत देता है। ये यकीन उसके लड़ाका लोगों को हौसला और साबित कदमी देता है। वो अपनी कोशिश को एक लंबी लड़ाई समझते हैं, न कि ऐसी जंग जिसे जल्दी जीता जा सके। जब फौजी सलाहियतों का मुकाबला किया जाए तो फर्क बिल्कुल साफ है। इसराइल के पास बेतहाशा रवायती फौजी ताकत है। उसकी टेक्नोलॉजी, तरबियत और वसाइल हमास से कहीं ज्यादा हैं।
किसी भी आम खुले मैदान की लड़ाई में आईडीएफ को शायद जल्दी जीत मिल जाए। उसकी फिजाया आसमान पर कब्जा कर सकती है। उसकी बख्तरबंद फौजें दुश्मन के इलाके में दूर तक घुस सकती हैं। उसके खुफिया इदारे उसे काम में बहुत बरतरी देते हैं। इस साफ फर्क ने कई दहाइयों से लड़ाई की शर्त तय की हैं। इसराइल की बड़े पैमाने पर फौजी कार्रवाई करने की सलाहियत यकीनी है, लेकिन हमास ने खुद को मुश्किलात का मुकाबला करने वाली और हालात के मुताबिक दिलजैन वाली मुखालिफ साबित किया है। उसकी ताकत गैर बराबर जंग में है। वो ऐसी सीधी लड़ाइयों से बचती है जहां इसराइल की ताकत ज्यादा नुमायां हो। इसके बजाय वो शहरी इलाके के अपने इल्म और अपनी सुरंगों के जाल का फायदा उठाती है। वो गेरिल्ला तरीका इस्तेमाल करती है ताकि नुकसान पहुंचाए और लड़ाई को लंबा करे। इस हिकमत अमली का मकसद इसराइली फौजी कार्रवाइयों का खर्चा बढ़ाना है। हमास समझती है कि वो आईडीएफ को आम तरीके से शिकस्त नहीं दे सकती। उसका मकसद मुजाहिमत करना, खुद को बचाना और ये दिखाना है कि कीमत चुकानी पड़ती है। ये चीज़ उन्हें मादी तौर पर कमजोर होने के बावजूद एक सख्त मुखालिफ बनाती है। इसराइल अपनी जबरदस्त फौजी ताकत के बावजूद बड़ी मुश्किलात का सामना करता है। जबकि आयरन डोम जैसे निजाम आने वाले रॉकेट्स का बड़ा हिस्सा रोक लेते हैं, कुछ जरूर निकल जाते हैं। इससे आम शहरी मरते हैं और हर तरफ परेशानी फैलती है। गाजा में लंबी फौजी खकर दुनिया भर में सख्त तंकीद होती है। इन लड़ाइयों का इंसानी नुकसान बहुत ज्यादा होता है। गाजा पर लंबा कब्जा या मुहाशरा कायम रखना भी वसाइल पर बोझ डालता है। आम आबादी के अंदर मजबूती से कायम हथियार बंद गिरोह के खिलाफ लड़ाई इखलाकी और अमली तौर पर बहुत सी मुश्किलात से भारी हुई है। मैदान जंग में जीत हमेशा मुस्तकिल अमन या हिफाजत नहीं लाती। आखिर में इसराइल और हमास के दरमियान ये लड़ाई एक हमेशा कायम रहने वाले बड़े फर्क की अफसोसनाक मिसाल है। इसराइल फौजी बरतारी और टेक्नोलॉजी की ताकत के जरिए हिफाजत चाहता है। हमास मुजाहिमत, अपने नजरिए और तकलीफ बर्दाश्त करने और तकलीफ देने की सलाहियत पर इन्हिसार करती है। ऐसा लगता है कि कोई भी फरीक जित हासिल नहीं कर सकता जो हमेशा के लिए हो और सब कुछ तय कर दे। इसराइल बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है, लेकिन हमास के लड़ने के इरादे को बिल्कुल खत्म करने में जद्दोजहद करता है। हमास इजरायली जिंदगी में रुकावट डाल सकती है और उसके कंट्रोल को चैलेंज कर सकती है, लेकिन इसराइल की फौजी ताकत का मुकाबला नहीं कर सकती। इस तरह तशद्दुद का यह सिलसिला जारी रहता है, एक ऐसी सरजमीन पर अफसुर्दा रक्स जो अमन के लिए तरस रही है। इसराइल के लिए असल चैलेंज ये कि वो फौजी ताकत से हटकर कोई ऐसा हल तलाश करे जो देर तक चल सके, और हमास के लिए चैलेंज ये है कि वो कोई ऐसा रास्ता निकाले जो उसके लोगों को हमेशा